بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو ناول شروع کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی پیارا ناول ہے، بن مانگی دعا۔ عفت سحر طاہر نے اسے لکھا ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح دوستانہ ہی رکھا۔ خیر ایسی بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے کہ میری خاطر تم کچھ چھوڑتے پھرو گے۔ ان کے آگے آملیٹ کی پلیٹ کھسکاتے ہوئے دوسری پلیٹ میں ٹوسٹ رکھنے لگیں۔ امتیاز احمد کو معلوم تھا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ کمال کرتی ہو سفینہ بیگم، میں کون سا چار کر کے بیٹھا ہوں جنہیں چھوڑ کے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر سکوں۔ انہوں نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے نیم مزاحیہ انداز میں کہا۔ یہاں تو ایک ہی دل پہ بہت بھاری ہے، سفینہ نے جل کر کہا تو توجہ دیے بغیر اپنے لیے کپ میں چائے نکالنے لگے۔ سفینہ کا دل اور جلا، اور ایسا ہمیشہ اسی وقت ہوتا تھا جب وہ امتیاز احمد سے الجھنا چاہتی اور وہ یوں ان سے دامن بچاتے جیسے وہ کانٹے دار جھاڑی ہوں۔ ان کی تلملاہٹ بھری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے امتیاز احمد نے خود ہی بات بدل دی۔ موئز چلا گیا یونیورسٹی؟ جگا کے آئی ہوں، فریش ہو کے آ رہا ہے۔ اعراز اور زارا چلے گئے ہیں کالج۔ مجبوراً ہی صحیح مگر سفینہ کو بھی اپنا موڈ بحال کرنا پڑا۔ اسی وقت نکھرا نکھرا سا موئز چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اتنی دیر؟ امتیاز احمد نے نظر بھر کے خبرو بیٹے کو دیکھا۔ جی ابو، پہلے 2 پیریڈز فری تھے، سوچا آرام ہی کیا جائے۔ وہ مسکرایا اور اس کو مسکراہٹ دیکھ کر امتیاز احمد کو احساس ہوا موئز ان کا سب سے چلبلا اور حاضر جواب بیٹا ہوا کرتا تھا، مگر اب ایک عجیب سی سنجیدگی اور لیا دیا سا انداز اس کی پہچان بنتا جا رہا تھا۔ اچھا کیا۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ سفینہ نے جوس کا گلاس بھر کے موئز کے سامنے رکھا۔ اسی وقت امتیاز احمد کا موبائل بجنے لگا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو موئز، ضروری نہیں کہ یونیورسٹی جا کے علم قلم سے پیٹ بھرا جائے۔ سفینہ بیٹے کو توک رہی تھی۔ اچھا۔ امتیاز احمد مبہم سے انداز میں فون پر بات کر رہے تھے۔ کتنے چاہیے؟ ان کا لہجہ مدھم پڑا تو سفینہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کب تک؟ امتیاز احمد انہیں متوجہ ہوتے دیکھ کر اٹھ گئے۔ موبائل ان کے کان سے لگا ہوا تھا، وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گا، تم فکر مت کرو، وہ دھیمی آواز میں کہتے دور چلے گئے تھے۔ دیکھا تم نے کن ہواؤں میں اڑ رہے ہیں؟ دانت پیستے ہوئے سفینہ نے کہا تو موئز چونکا۔ جی ماما، کون اڑ رہا ہے؟ یہی تمہارا باپ، اور کون؟ کئی دفعہ ایسے ہی خفیہ فون آتے ہیں دن میں۔ وہ تلملا رہی تھی۔ موئز نے ایک سلگتی نگاہ ادھر ڈالی جدھر امتیاز احمد گئے تھے۔ وہ کیا ناواقف تھا باپ کی اس ادا سے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ فون کال تھی جو اس کی ماں کے سامنے سننے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، مگر جسے سننے سے وہ انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ کم آن مما، ایسے کوئی خفیہ والوں سے تعلقات نہیں ہیں ان کے۔ موئز نے سراسر انہیں بہلایا۔ لکھ کے رکھ لو تم موئز، تمہارا باپ ابھی تک اس خرافہ سے رابطے میں ہوگا۔ دنیا چھوڑ دی اس نے، یہ نہیں چھوڑے گا۔ اس موضوع پر سفینہ حد سے زیادہ زہریلی ہو جاتی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ سالوں پہلے وہ قصہ ابو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے ختم کیا تھا، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آیا؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ مگر یہ مت بھولو کہ وہ مجبور ہو گیا تھا اس قصے کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں تھا۔ میں تو مجبوری کا سودا ہوں اس شخص کے لیے۔ سفینہ نے اولاد سے کبھی ماضی کا ایک لفظ نہ چھپایا تھا، کیونکہ یہ ان کے باپ کا ماضی تھا، اپنا ہوتا تو یقیناً چھپاتی۔ امتیاز احمد لوٹ آئے۔ آفس سے فون تھا۔ ان کی وضاحت قطعی غیر ضروری تھی۔ تو یہیں بیٹھ کے سن لیتے ہیں، یہاں کون سا پابندی ہے آفس کے متعلق بات کرنے پر؟ تم تو یوں اٹھ کے کونے میں گئے جیسے پرانی محبوبہ نے فون کر دیا ہو۔ سفینہ کی زبان کے آگے کھائی تھی۔ اب کی بار امتیاز احمد کو بھی برا لگا۔ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو سفینہ، چھوٹے چھوٹے لفظوں کی پکڑ بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ پھر وہ انہیں مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر موئز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم فارغ ہو چکے ہو تو مجھے ذرا بینک لے چلو، پھر آفس چھوڑ دینا۔ ان کی گاڑی ورک شاپ میں تھی اور آج کل ان کے پینکٹ ڈراپ کی ذمہ داری موئز پر ہی تھی۔ جی چلیے۔ وہ فوراً ہی اٹھ گیا۔ اس موضوع نے اس کی طبیعت بھی اچھی خاصی کمدر کر دی تھی۔ جانے اس موضوع کے ساتھ موئز احمد کے کیسے تار جڑے تھے کہ اس کی سوچیں مرتعش ہو جاتی اور وہ خود کو بہت تنہا اور بے بس پاتا۔ آفس کا فون، ابھی میں موبائل چیک کرتی نا تو پول کھل جاتی جناب کی۔ جو ان کی اولاد کا لحاظ کیا میں نے، ورنہ… سفینہ کا غصہ ان کے جانے کے بعد بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ امتیاز احمد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر تعصب سے بولے، اپنی ماں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ خواہ مخواہ اپنا بی پی شوٹ کرتی رہتی ہے۔
ان کے سامنے جب خفیہ فون کالز آئیں گی تو ان کا بی پی شوٹ کرے گا۔ موئز کا انداز خفگی سے بھرا تھا۔ تم بھی؟ امتیاز احمد کو برا لگا۔ کیا ابو، خام خواہ کا سر درد پال رکھا ہے آپ نے، کیوں اپنی پرسنل لائف خراب کر رہے ہیں؟ یاد کریں مما کا رویہ تب سے اتنا پوزیسو ہوا ہے جب سے ان کالز کا سلسلہ چلا ہے۔ موئز نے انہیں یاد دلایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بڑے سرسری انداز میں پوچھنے لگے، تم بتاؤ، تم نے اپنے فیوچر کے متعلق کیا سوچا ہے؟ موئز نے بے اختیار باپ کا چہرہ دیکھا۔ وہ ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہے تھے۔ موئز ان کے سوال کی گہرائی اچھی طرح سمجھتا تھا، تبھی سامنے متوجہ ہوتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، میں اپنی زندگی کی اپنی ترجیحات کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں میری کوئی خواہش شامل ہو جائے تو… ان کے لب و لہجے میں ایک آس، ایک امید سی اتر آئی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے موئز احمد کا دل ویسے ہی پگھلنے لگا جیسے آج سے 3 سال پہلے۔ اس سے سر جھٹکا۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کی خواہش کا بوجھ ہی ڈھو رہا ہوں میں۔ اس یاد نے حسب معمول سے تلخ کر دیا تھا۔ اگر تم چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو موئز۔ اگر ایک قدم میں نے اٹھایا ہے تو دوسرا قدم تم اٹھاؤ۔ انہیں نے بدستور مصالحانہ انداز اپنائے رکھا تھا۔ میں وہ قدم اٹھا چکا ابو، مگر اب بس، اور کچھ نہیں۔ میں اس راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتا۔ اپنی زندگی کے لیے میں اپنے دل و دماغ کی تمام تر رضامندی کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سلگتے ہوئے قطعی انداز میں جواب دیا۔ امتیاز احمد نے لب بھینچے۔ موئز نے بینک کے سامنے گاڑی روکی۔ یہ ٹاپک مجھے ٹینشن کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا ابو۔ ماما کے سامنے میں خود کو چور سا محسوس کرتا ہوں، کیونکہ اس راز میں آپ کا شریک ہوں۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا، قدرے رکا اور پھر تلخی سے بولا، بلکہ اس گناہ میں بھی، جسا کرنے کی اجازت مما زندگی بھر نہ دیتی۔ تم محض جذباتی ہو رہے ہو موئز، کبھی اس سے ملو گے تو یقین کرو میرے فیصلے کو بہترین پاؤ گے۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے رسانیت سے بولے۔ موئز نے سلگتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بینک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بہترین فیصلہ، جس کا تاوان 3 سال سے موٹی موٹی رقموں کی صورت میں بھر رہے ہیں۔ آپ اس کی رگ رگ میں وحشت سی بھرنے لگی تو پرانگدہ سوچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے گاڑی میں پرشور میوزک لگا دیا اور سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کیا بات ہے، کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ دب سے اس کے پاس گھاس کے کتے پر بیٹھی ہوئی ہنا نے کچھ اس قدر اچانک آ کے پوچھا کہ وہ پل بھر کو گڑبڑا سی گئی، پھر جلدی سے خود کو سنبھالا۔ اتنی جلدی پیریڈ ختم ہو گیا؟ اس نے بات بدلنا چاہی، مگر ہنا بے وقوف ہرگز نہ تھی۔ محترمہ، آدھے گھنٹے کا پیریڈ تھا، اور آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے، جب میں گئی تھی تب بھی تم اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اور جب میں آئی ہوں تب بھی ویسے ہی بیٹھی ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، بتایا تو تھا، سر میں درد ہے، تبھی تو کلاس بھی بنک کی ہے میں نے۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے گویا وہاں سے شکستگی کے تاثرات کو مٹانے کی صحیح کی۔ اللہ! ہنا نے جیسے اپنے جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کے لیے گردن گھما کر دور لان میں بیٹھے لڑکیوں کے گروپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ ہنا نے چند لمحے کے بعد اسے گھورا۔ تمہارا مسئلہ پتہ کیا ہے ابیہ؟ کہ تم ہر پل ایک گم گشتہ سیارہ بنے رہنا چاہتی ہو، جسے ہر وقت کوئی کھوجتا رہے۔ خود سے مجال ہے جو ایک لفظ بھی پھوٹ دو۔ وہ خجل سی ہوئی۔ پچھلے 3 سال سے وہ دونوں بہترین سہیلیاں تھیں، اور ابیہ اسے اتنا جان نہیں پائی تھی جتنا ہنا اسے سمجھ چکی تھی۔ سیمیسٹر کی فیس کے لیے پریشان ہو؟ ہنا نے یکلگتی سے اتنے یقین سے پوچھا کہ وہ جو مصمم ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ کم از کم ہنا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، چپ کی چپ رہ گئی۔ چند ثانیوں تک اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہنا نے لاپرواہی سے کہا، اچھا چھوڑو ان فضول اور فالتو کے مسائل کو، چلو کینٹین میں چل کے گرما گرم سموسے کھاتے ہیں، ساتھ میں ٹھنڈی ٹھار بوتل۔ ابیہ نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا، پھر ناراضگی سے بولی، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، سر میں درد ہے۔ ہاں، فقط درد ہی درد ہے اس میں، دماغ تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہنا اب طنز پر اتر آئی تو اس کا دل گداز ہونے لگا۔ گھر فون کیا تھا؟ ہنا نے جیسے اس پر ترس کھا کر پوچھا۔ ہاں، کہہ تو رہے تھے کہ پیسے بھجوا دوں گا، مگر کل لاسٹ ڈیٹ ہے فیس جمع کرانے کی، بلکہ ہاسٹل کی ڈیوز پے کرنے کی ڈیٹ تو گزر بھی چکی۔ ابیہ کے لہجے میں محسوس کن تکن تھی۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ یار، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے تمہارا یوں ہاسٹل میں رہنا، بلکہ ان 3 سالوں میں نے تمہیں کبھی کبھار ہی گھر جاتے دیکھا ہے، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے، اور بس۔ اور یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر ابیہ مراد کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ جو اس کا باپ ہونے کا دعویٰ دار تھا وہ اسے محض چند گھنٹے کے لیے ٹہلانے ہی لے جا سکتا ہے، اور بس۔ وہ تو شکر تھا کہ چھٹیوں میں ہنا گھر چلی جاتی تھی، ورنہ اسے یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ ان دنوں میں بھی ابیہ یہیں ہوتی تھی۔
हॉस्टल वीरान हो जाता। वो तो अल्लाह मेहरबान था कि हॉस्टल वार्डन की रिहाइश वहीं थी और वो इजाफी किराया वसूल करके अबिया को वहाँ रहने की इजाज़त दे देती थी। तो क्या हुआ, तुम्हारा घर भी तो इसी शहर में है, तुम भी तो हॉस्टल में ही रहती हो। अबिया ने फिलफौर खुद को संभाला। अपने माजी को नंगा करके वो खुद को बेपरवाह नहीं करना चाहती थी, फिर इस कदर गलीज माजी। मेरा मसला और है। हिना ने सर झटका। तो बस, मेरा मसला भी और ही है, बताया तो था तुम्हें, सुतेली माँ मुझे घर में कदम नहीं रखने देती। अभिया ने उससे नजरें मिलाए बगैर कहा और फिर फौरन ही बैग संभालती उठ गई। अच्छा चलो, आज कैंटीन का बिल तुम्हारे जिम्मे, पैसे आएंगे तो मैं भी तुम्हें ऐश कराऊंगी, कभी तो मुझ पर एतबार करोगी। हिना उसे जिताते हुए उठी। अभिया लब भींच कर रह गई। इम्तियाज अहमद, तुम पूछते क्यों नहीं मुई से, क्यों इतना बदलता जा रहा है? इसकी सरगर्मियों पर नजर रखो, कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं। सफीना ने लॉन में बिछी मेज पर चाय रखते ही ड्रोन हमला कर दिया था। अखबार में गुम इम्तियाज अहमद चौंके। बेख्तियार अखबार बंद करते हुए पूछा, तुम्हें कैसे शक हुआ? एक तो ये कि वो तुम्हारा बेटा है, और दूसरा ये कि इसकी खामोशी और संजीदगी बढ़ती जा रही है। शादी का नाम लूं तो यूं भी लगता है जैसे किसी गुनाह का काम कह दिया हो। तंज करने से वो बाज ना आई थी, फिर अपने कच्चात भी बता दिए थे। उन्होंने गहरी सांस भरी। तुम भी ना सफीना? उन्होंने तासुब से बीवी को देखा। वो बाप तो कब का बंद हो चुका, बल्कि मैंने अपने हाथों बंद कर दिया। दिल की मर्जी से तुमसे शादी की, मगर तुम्हें आज तक यकीन नहीं आ सका। हाँ, सफीना की साफ गोई में हर धर्मी की झलक थी, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो बाप मुकम्मल तौर पर बंद हुआ है। कहीं ना कहीं उस तहरीर की झलक मुझे दिखाई दे ही जाती है। सफीना की बात पर उन्होंने गहरी सांस भरकर जैसे अंदर की कसाफत को कम किया, फिर अखबार लपेटते हुए मेज पर रख दिया। इस उम्र में लड़के यूं ही बातों को दिल पर ले लेते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। इन्होंने गोल गोल सा तबसरा किया, मगर वो सफीना इम्तियाज थी जिन्होंने गुजरे 25 बरसों में इनका माजी नहीं भुलाया था और ना ही उन्हें भूलने दिया था, तो अपने लाडले बेटे के मामले में कैसे चूकती? अगर कोई मसला है तो मुझसे शेयर करे ना, पहले भी तो ऐसे ही करता था, मगर अब 2-3 सालों से जैसे अपने आप में सिमट कर रह गया है। ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो मोहताज से अंदाज में कहकर चाय पीने लगे। सफीना ने तेज नजरों से इन्हें देखा। यानी कोई मसला है इसके साथ? इम्तियाज अहमद गड़बड़ा से गए। ये मैंने कब कहा? मैंने तो पुरसबील बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई मसला हो उसका, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। सफीना ढीली पड़ गई। यूनिवर्सिटी के बाद चंद घंटों के लिए तुम्हारी फैक्ट्री में भी तो बैठता है, कुरेदने की कोशिश करो उसे। सही कह रही हो, वो फर्मा बरदारी से बोले। क्या कहते, बेटे के गुजरे सालों का एक एक पल वो जानते थे। इनकी ख्वाहिश पर वो कारदार राह पर चल पड़ा था। अगर सफीना जान जाती कि बाप बेटा किस बात के हमराज हैं, तो क्यामत से पहले ही शायद इस घर में क्यामत आ जाती। ज़ारा और एराज अंदर से किसी बात पर उलझते हुए चले आ रहे थे। इन दोनों की तवज्जो बटी। मामा, देख रही है इसे कितना बिगड़ आई है। आइंदा मैं अब्बू के साथ कॉलेज जाऊंगी और इन्हीं के साथ वापस आऊंगी, या फिर भाई के साथ। वो धप से कुर्सी पर बैठी। इसका मुंह फूला हुआ था, जबकि एराज के होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी। इम्तियाज अहमद बेख्तियार मुस्कुरा दिए। क्यों भाई, क्या मामला हो गया? हमारी चहचहाती चिड़िया उदास क्यों है? मौसम तो बहुत अच्छा है, आज फिर क्यों मूड खराब है? इन्होंने प्यार से पूछा तो सफीना के दिल में हमेशा की तरह सुकून सा भरता चला गया। इम्तियाज अहमद का औलाद से मोहब्बत करना इन्हें हमेशा अपने पैरों की मजबूती का एहसास दिलाता था। हाँ हाँ, पूछें इससे। एक तो इसे पिक एंड ड्रॉप करो, धूप में घंटों खड़े होकर अपना रंग जलाओ, और इसे देखें एहसान फरामोश। एराज ने कबाब उठाया। तो कौन कहता है वहां लड़कियों को ताड़ने की ड्यूटी सर अंजाम दो? ज़ारा तिनकी। देखा आपने, देगी का तो जमाना ही नहीं है। वो शाकी हुआ, मगर इसकी निगाहों और अंदाज से छिलकती शरारत वाज़ेह थी। मैं बाज आई ऐसी नेकी से। ज़ारा ने दोनों हाथ जोड़ के माथे से लगाए। ईजू, क्यों तुम तंग करते हो बहन को? सफीना ने प्यार से बेटे को घिरका। भरी दोपहर में अपने कॉलेज से इसके कॉलेज तक जाओ, वहां जल्दी धूप में खड़े होकर इसका इंतजार करो। बहन साहिबा फिर भी राजी नहीं। वो अपने कप में चाय निकालता मुतासिफ हुआ। हाँ, और वो भी बताओ ना जो मुझे ऑर्डर दे रखा है कि आधे घंटे से पहले कॉलेज गेट से बाहर ना निकलूं। ज़ारा तिल मिलाई, फिर इसकी शिकायत करने लगी। दरख्त से टेक लगा के हीरो का पोज मारे खड़ा रहता है जब तक सारी लड़कियां नहीं चली जाती।
इम्तियाज अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट चमकी, जैसे बेटी की नाराजगी के डर से वो छुपा गए। अलबत्ता सफीना ने बेटे को घिरका। ईजू, क्या सुन रही हूँ मैं? जाहिर है जो आपकी बेटी बताएगी वही सुनेंगी आप। हम मर्दों की इस घर में चलती ही कम है। क्यों अब्बू? वो बात को कहीं का कहीं ले गया। इम्तियाज अहमद हंस दिए। अब आप ही बताएं मामा, इतनी गर्मी में इतना फासला तय करके इसे रोज लेने जाता हूँ। अब धूप में जलने का कोई फायदा भी तो हो। चंद हसीन चेहरे देखकर फ्रेश होने में हर्ज है क्या? वो रिटाई से बोला तो ज़ारा रोहानसी होने लगी। देख रही हैं आप किस कदर बेशरम है ये, जरा जो अपने करतूत छुपाता हो। वो दोनों जुड़वा थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मगर दूसरे ही पल गहरे दोस्तों की मानद हो जाते। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। एराज ने बड़े बुरे स्टाइल से शेर पड़ा था। उफ, चाय ठंडी हो रही है। जाओ ज़ारा, भाई को बुला के लाओ। इतने अच्छे मौसम में भी आके कमरे में बंद हो गया है। सफीना ने बात समेटी। वो तो मैं चली ही जाऊंगी। वो झटके से उठी, फिर उंगली उठाते हुए बोली, मगर इस मसले का हल मुझे चाहिए। धूम मची हुई है वहां लड़कियों में कि पता नहीं ये हीरो लेने किसको आता है। एराज का कहका भी साख्ता था। तारीफ का शुक्रिया। वो अदाब बजा लाया। ज़ारा पाँव पटकती अंदर चली गई। क्यों तंग करते हो उसे? सफीना ने तंबीही नजरों से बेटे को देखा। उसे शौक है तंग होने का, मेरी तारीफों से जेलस होती है और बस। वो लापरवाही से बोला और अपना कबाब खत्म करने लगा। ज़ारा दरवाज़ा खटकाकर इजाज़त मिलने पर मुइज़ के कमरे में दाखिल हुई तो वो शीशे के आगे खड़ा बाल संवार रहा था। इतने अच्छे मौसम में आप कमरे में क्या कर रहे हैं? ज़ारा मुस्कुराई। देख तो लिया ही है तुमने, अब क्या बताऊं? वो ब्रश लहराकर बोला। चाय ठंडी हो रही है और मेरा मूड खराब। ज़ारा ने मुंह फुलाया। वो ब्रश रख के पलटा। क्या हुआ, फिर कोई नई लड़ाई? वो इसके साथ चलते हुए कमरे से बाहर आई तो पूरे होशो खरोश से इसे इराज की शिकायत लगा रही थी। इसे ज़ारा के साथ आते और पूरी तवज्जो से बहन की बात सुनकर मुस्कुराते देख सफीना का दिल मुतमिन हुआ था। मुँह इसके लिए कप में चाय निकालने लगी। ज़ारा के लिए इन दिनों एक बहुत अच्छा प्रपोजल ज़ेरे गौर था। खाने के बाद चाय का दौर चला तो यही मौजू ज़ेरे बहस था। मैं तो हर तरह से मुतमिन हूँ। अच्छी फैमिली है, लड़के के मुतल्लिक भी अच्छी रिपोर्ट ही मिली है। इम्तियाज अहमद ने गोया गेंद सफीना के कोर्ट में फेंक दी तो उन्होंने मदद तलब नज़रों से मुइज़ को देखा। अच्छे लोग हैं मामा, और फिर सफ़ीर को थोड़ा बहुत तो मैं पहले से भी जानता हूँ, बड़ी अच्छी तबीयत का बंदा है। गोया मुइज़ भी राज़ी था। और मेरी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। एराज ने हाथ उठाकर रजामंदी दी तो किचन में बर्तन धोती ज़ारा तिलमिलाई। इसको तो मैं पूछूंगी, बड़ा शौक है इसे मेरी शादी करवा के अपना रास्ता क्लियर करवाने का। अभी तो पढ़ रही है। वो मुतज़ब्ज़िब थी, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने भी नहीं देना चाहती थी और बेटी की नौमरी का फ़र्क भी लाहक था, नौमरी का खौफ भी लाहक था। साल ही तो रह गया है मामा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब शादी कर दीजिएगा, फिलहाल मंगनी की रस्म कर लें। मुइज़ ने मशवरा दिया। मिसिस राज तो हथेली पर सरसों जमाने को तैयार है बेटा। सफ़ीर का इरादा है फ्रांस जाने का। इनका ख्याल है कि निकाह कर दें हम ज़ाहरा का। सफीना ने नई बात बताई तो लम्हे भर को सब चुप रह गए। फ्रांस करने क्या जा रहा है? इम्तियाज अहमद को अचंभा हुआ। इनका तो यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। बाप है, 3 और भाई भी हैं साथ। पता नहीं कोई रिफ्रेश कोर्स इसके लिए जाना चाह रहा है, वहाँ मामू होते हैं उसके। सफीना ने बताया तो इम्तियाज अहमद ने हंकारा भरा। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मुइज़ और ज़ारा की शादी इकट्ठी करूं। सफीना ने अचानक ही इजहार किया। इम्तियाज अहमद ने बेख्तियार मुइज़ को देखा जिसके तासुरात फौरन ही पथरीलापन उतारने लगे थे। अपनी बात कहकर सफीना मुंतज़िर निगाहों से मुइज़ को देख रही थी। वो ज़रा सा झुंझला गया। मेरा यहाँ क्या जिक्र? हालांकि जिक्र तो मेरा होना चाहिए, मेरे साथ पैदा हुई है वो। इराज ने मुंह बसूरा, मगर सफीना शायद इसके बारे में संजीदगी से सोच रही थी। क्यों, क्या तुम शादी नहीं करोगे कभी? फिलहाल तो आप ज़ारा की शादी पर फोकस करें, मैंने इस मामले में भी कुछ सोचा नहीं। वो माँ से नज़र चुरा गया। तो अब सोच लो, दिनों में लड़की मिल जाएगी मेरे शहजादे बेटे के लिए। सफीना मुस्कुराई और प्यार से इसे देखा। इम्तियाज अहमद का दिल घबरा सा गया। सही कह रहा है ये, तुम ज़ारा के मुतालिक सोचो, अभी इसकी कौन सी उम्र निकलती जा रही है, सोच लेने दो अच्छी तरह। इम्तियाज अहमद जिस लजाजत से बोले थे सफीना को हैरत ने घेरा, जबकि बाप की तरफ उठने वाली मुइज़ की निगाह में शिकवा तासुफ था। बड़ी जिताती हुई निगाह थी उसकी। कमाल है,
मैं चाहती हूँ कि ज़ारा के जाने के बाद इस घर में एक रौनक आ जाए और आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई। सफीना उनसे उलझने लगी। ओफो, अभी तो यूनिवर्सिटी चल रही है उसकी, ठीक से अपने पाँव पे खड़ा तो हो लेने दो। साफ लग रहा था कि इम्तियाज़ अहमद मुइज़ की शादी के हक में नहीं है। अभी भी आपके साथ फैक्ट्री संभाल रहा है, ये शादी ना करने का मजबूत जवाब नहीं है। सफीना ने इस एतराज़ को तस्लीम नहीं किया था। कम ऑन। यकलती मुइज़ ने दोनों हाथ टेबल की सतह पर मारे तो एकदम खामोशी सी छा गई। इस मौजू को छोड़ दें आप लोग, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तल्खी से कहता वो वहां से उठ के ही चला गया। माय गॉड, इन्हें क्या हुआ, इतना गुस्सा? एराज हैरान था और परेशान तो सफीना भी कुछ कम ना थी। मुइज़ का रवैया कुछ नफसियाती सा लगने लगा था और यूं शादी के नाम से बिदकना। इनका दिल हौला सा गया और इन सबसे सिवा इम्तियाज़ अहमद के किसी और ही फिक्र में थे, कहीं मुइज़ शादी के लिए राजी ही ना हो जाए। ये सोच उनके चेहरे से हुवैदा थी। हिना तेजी से दरवाजा खोल के अंदर आई तो अबिया को इन्हीं कपड़ों में मलबूस नोट्स के साथ सर खपाते देखकर चिल्ला उठी, तुम अभी तक यूं ही सर झाड़ मुंह फाड़ बैठी हो? अबिया डर सी गई, मगर हिना को देखा तो निगाहों में ताइश सी उतरी। वो अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। नए स्टाइल की कटिंग, फेशियल और आईब्रोज बनवाने से उसकी शक्ल निकल आई थी। मैं क्या करूंगी वहां जाकर हिना, तुम्हारा भाई कहेगा किसे उठा लाइए साथ। हिना की खशमगीन निगाहों के जवाब में वो गड़बड़ा कर बोली। इसने खा जाने वाले अंदाज में कहा, वो मेरा भाई है, तुम्हारा नहीं। उठो और अब मजीद एक लफ्ज भी कहे बगैर तैयार हो जाओ। इसने हाथों में थामे शॉपिंग बैग्स बिस्तर पर ढेर किए। अच्छा, तुम्हारा बर्थडे है, होटल में जाने की क्या तुक बनती है? घर जाके सेलिब्रेट क्यों नहीं करती? अभिया ने अपनी उलझन को जुबान दे ही दी। वहाँ टाइम किसके पास है मेरे लिए? मम्मी को अपने पार्टी से फुर्सत मिले तो दूसरों की पार्टी शुरू हो जाती हैं, और पापा तो हैं ही अमेरिका में। वैसे मैंने खाली दीवारों से जाकर सर फोड़ने से बेहतर है कि भाई के साथ चंद लम्हे खुशी के बिता लूं। हिना उदास होने लगी तो अबिया को अफसोस हुआ कि ऐसी इस मौजी को छेड़ दिया, जिसके मुतालिक वो पहले भी कई मरतबा बता चुकी थी। अच्छा, इस बार माफ कर दो और अपना गिफ्ट यहीं वसूल कर लो। अगली बार लाजमी तुम्हारे साथ जाऊंगी। खबरदार। हिना ने आंखें निकाली, जो तुमने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो। ओफो, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, पता तो है तुम्हें। अभी यह कश्मकश का शिकार हुई। वो तो तुम फिक्र ही मत करो, ना सिर्फ अपनी बल्कि तुम्हारी भी अच्छी शॉपिंग करके लाई हूँ। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ के शॉपिंग बैग्स उलटने लगी तो बिस्तर पर दो जगमगाते जोड़ों के साथ क्या क्या अल्लम गल्लम बिखर गया। अभिया गहरी सांस भर के रह गई कि अब फरार की कोई सूरत ना बची थी। अच्छा, वेरी गुड। तुम्हारी सलाहियतों का मैं यूं ही तो मोतरफ नहीं हूँ। सफीना बेडरूम में दाखिल हुई तो इम्तियाज़ अहमद बड़े मूड में किसी के साथ मोबाइल पर महवे गुफ्तगू थे। इन पर निगाह पड़ी तो इम्तियाज़ अहमद ने बात मुख्तसर कर दी। चलो ठीक है, बाकी बातें मिलके तय करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। क्यों फ़ोन बंद कर दिया? मैं कौन सा आपके फ़ोन में आपकी गुफ्तगू में खलल डालती? सफीना अंदर की बेचैनी को दबाते हुए बोली और बेड के किनारे पर टिक गई। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है हमारी कंपनी को, इसके लिए लोन भी मंजूर हो गया है। वो खुश थे। अच्छा, सफीना ने शक्की अंदाज में कहा। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। इम्तियाज़ अहमद ठट गए, इनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। क्या बात है तुम्हारी सफीना बेगम, ना कभी खुद मेरे दिल में उतरी ना मुझे मौका दिया तुमने। इतने सालों में भी नहीं जान पाई मुझे। इनके अंदाज में बहुत अरसे बाद शिकवा दर आया था, वरना इससे पहले तो वो नजर ही अंदाज ही कर देते थे इनके हर शक और हर कजदाई को। और वाकई सफीना ने हमेशा इन्हें सतही अंदाज से परखा था, कभी अंदर ना उतर पाई। अभी भी वो इसी तनाजुर में बोली थी। दिल, तुम्हारे पास दिल था ही कब इम्तियाज अहमद? मेरे पास तो तुम बेदिल ही आए थे, बेहरू जज्बों के साथ। क्या इस बात से भी इनकार करोगी कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो इस वक्त सिर्फ तुम्हारा था? वो बहस कम ही करते थे, मगर इस वक्त जैसे वो भी बहस पर उतर आए थे। सालिया तुम्हारी मंगेतर ही नहीं, बचपन का प्यार थी इम्तियाज अहमद, और मोहब्बत की राह में तुम नहीं वो किसी और मोड़ मुड़ गई। तुम तो तन्हा शाहरा मोहब्बत पर चलते ही जा रहे थे। ऐसा इश्क था तुम्हें उस बेहया से जिसने पता नहीं किसके साथ यारी लगा ली। सफीना इस जिक्र पर सालों बाद भी इस जज्बातियत का शिकार थी जैसे आज ही की बात हो। सफीना, इनके अंदाजे गुफ्तगू ने इम्तियाज अहमद की रंगत लाल कर दी। इन्होंने तंबीही अंदाज में सफीना को टोका, मगर वो अपने मिजाज की मालका थी। तो क्या झूठ है इसमें इम्तियाज अहमद? कहो क्या इसने किसी और की खातिर तुम्हें ठुकरा ना दिया था?
सगी चचा साथ थी तुम्हारी, मगर कैसी फितरत बद फितरत निकली। सर से पांव तक नीलो नील कर दिया माँ बाप ने, मगर इसका 4 दिनों का इश्क जीत गया। वो सुलगते लहजे में सारी कहानी बयान कर रही थी। शादी से इनकार बहरहाल मैंने किया था, बल्कि इसकी शादी से पहले मैंने तुमसे शादी कर ली थी। वो तकलीफ में थे। सफीना बेगम यूं ही निश्तर हाथ में लिए इनके जख्म कुरेदती रहती थीं, किसी माहिर जराह की तरह। जानती थी जख्म को कहाँ से छेड़ना है। इसमें भी तुम्हारी मोहब्बत बल्कि इश्क की खुदगर्जी शामिल थी, क्योंकि तुम जानते थे तुम्हारे चचा सालिया की वहां शादी मर के भी ना करते। तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर सालिया की मोहब्बत कामयाब करवा दी। तुमसे मायूस होकर तुम्हारे चचा ने इसे ब्याह दिया उसके आशिक के साथ। वो जिंदगी भर यूं कता ताल्लुक क्या कि माँ बाप के मैयतों पर भी ना पहुंच पाई। वो जैसे लुत्फ ले रही थी सालिया की बेबसी, इम्तियाज अहमद की नाकाम मोहब्बत का। वाकई जब सालिया अपनी मोहब्बत के लिए इनके सामने तड़पी बिल्कि, तो इन्होंने माँ से कह दिया कि वो सफीना से शादी करना चाहते हैं। सफीना उनकी खाला साथ थी। हालात की नज़ाकत देखते हुए दिनों में सफीना इनकी दुल्हन बना दी गई। तब चचा ने बेटी की जिद और जान देने की हद तक हटेलेपन को देखते हुए इसकी मुराद सिद्दीकी से शादी करके इससे हर ताल्लुक तोड़ दिया। मगर ये सब तो माजी बईद था, ऐसा माजी जिसका दफन हो जाना ही बेहतर था। मगर सफीना तो इनके माजी को जैसे मसाले लगा के मम्मी बना के हनूत करके संभाले हुए रख थी। बस कर दो सफीना, अल्लाह के लिए बस कर दो। मर चुकी है वो, अब तो इसे बख्श दो। इम्तियाज अहमद बेख्तियार से हो गए। जमाने में वो किसी को पता ना चला उसके मरने का, तुम्ही से सुना था मैंने। राब्ता था तभी पता चला ना तुम्हें। वो बेहद शफाक थे, शायद दिल से इन्हें यकीन ही ना आता था कि वो हसीन मूरत मर चुकी है, जो कभी इम्तियाज अहमद के दिल की मलका हुआ करती थी। हाँ था राब्ता, मगर अब वो कहीं नहीं है। ये बात तुम क्यों नहीं समझ लेती? इसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बात भी तुम्हारे लिए काबिल इत्मीनान नहीं। वो फट पड़े तो सफीना एक झटके से उठ खड़ी हुई। हाँ नहीं है, और ना सारी जिंदगी होगी, क्योंकि उसने ठुकराया था तुम्हें। रास्ता उसने बदला था, तुमने नहीं। तुम्हारे दिल में तो इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत भरी थी। बेकार की बहस करके मेरा सर दुखा दिया तुमने। जाओ यहाँ से, या फिर मैं ही चला जाता हूँ। वो बददिल से हो गए। रहने दो, मैं ही चला जाती हूँ तुम्हारी तन्हाई से। तुम थोड़ी देर और यादों में खेल लो। वो जाते जाते भी तंज करने से बाज ना आई थी। इम्तियाज अहमद ने गहरी सांस भर के अंदर की कसाफत कम करने की सही की, फिर आंखें मूंद लीं। बिया, वार्डन को यही कहना तुम किसी दोस्त के यहाँ पार्टी है, क्योंकि मैंने इसे यही बताया है। हिनिया तैयार होने के बाद बोली तो सैंडल पहनती है बिया बिदकी। क्या मतलब? झूठ बोल के इजाजत ली है तुमने बाहर जाने के लिए? सो व्हाट? वो खबीस बाहर निकलने देती है कहीं हमें? इतनी मुश्किलों से तो मार्केट तक जाने दिया था उसने। एक्चुअली मैं तो हॉस्टल से बाहर जाती रहती हूँ ना, इसलिए मुझे इजाजत देते हुए से तकलीफ होती है। तुम्हारे लिए तो इसने फौरन इजाजत दे दी थी। हिना ने मजबूरी बयान की, मगर वो तजब्जुब का शिकार थी। अगर वार्डन को पता चल गया तो? मेरा यहाँ कौन है जिसका बहाना करके कहीं चली जाऊं मैं? ओफो, बिला वजह बताया तुम्हें? अरे यार, कहा ना किसी दोस्त का ही बहाना बनाया है। चलो अब शाम हो रही है, वापसी पर देर हुई तो वार्डन कच्चा चबा जाएगी हमें। हाँ चलो। वो दिल से इसके साथ जाने को राजी ना थी, मगर एक ही दोस्त थी, उसे नाराज होने का मौका भी नहीं देना चाहती थी। हिना ने तनकीदी नजरों से उसका जायजा लिया। बिल्कुल सादा से हुलिये में रहने वाली अबिया ने कीमती लिबास तो पहन लिया, मगर मेकअप की किसी शय को हाथ तक न लगाया। मगर इस सादगी में भी वो जगमगा रही थी, जबकि इसके बरक्स हिना ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। इसे हिना के साथ जाते देख वार्डन की निगाहों में नागवारी सी उतर आई थी। अबिया का दिल लरजने लगा। मैंने उसे कहा था कि तुम मुझे अपने साथ ले जा रही हो। हिना ने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए सरगोशी में बताया। बाहर आके अबिया ने नाराजगी से अपना बाजू छुड़ाया। इंसान ऐसा काम करे ही क्यों जिसमें झूठ बोलना पड़े? अगर तुम्हारा भाई खुद आके तुम्हें हॉस्टल से ले जाता तो हम दोनों गुनाहगार ना होती। अच्छा बीबी मोमना, आइंदा ऐसे ही करूंगी। हिना ने फौरन ही बात समेट दी। मेन रोड से इन्हें रिक्शा मिल गया तो किसी रेस्टोरेंट का नाम बताकर हिना जल्दी से अंदर बैठ गई, जबकि अबिया ने बड़ी बेदिली से अंदर कदम रखा था। वो इसके साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर हाय रे दोस्ती, ये वो भी काम करवा लिया करती है जो कोई दूसरा कहे तो हम सफाचट इनकार कर दें। अबिया सोच रही थी। आधे घंटे के बाद वो दोनों एक बेहतरीन रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। अबिया नर्वस होने लगी। यहाँ जाएंगे हम? हाँ तो? हिना ने जैसे इसकी परेशानी से लुत्फ लिया। हिना प्लीज, मुझे इन जगहों के
मैनर्स के बारे में ज़रा नहीं पता, बल्कि मुझे ये भी नहीं पता कि दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ। तुम चलो तो दरवाज़ा मैं खोल दूंगी तुम्हारे लिए। हिना बड़ी पुरएतमाद थी क्योंकि जिस क्लास से उसका ताल्लुक था वहाँ होटलिंग आम सी बात थी, मगर अभिया तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई होटल देखने वाली थी। हिना का हाथ थामे वो किसी छोटी सी बच्चे की तरह अंदर दाखिल हुई तो इसी के खुनक-ज़दा माहौल ने इनका पुरतकबाक इस्तकबाल किया। ढेर सारे लोग, बातों की भिनभिनाहट, बर्तनों का शोर, तेज रफ्तारी से आते जाते वेटर्स। अभिया की टांगें लरस रही थीं। ये तो कोई और ही दुनिया थी, गमों से दूर, बेफिक्र। कम ऑन बिया, बी कॉन्फिडेंट। क्या जाहिलों की तरह बिहेव कर रही हो? ऐसी जगहों पर यूं जाहिर करना चाहिए जैसे कितनी ही दफा आ चुके हों। हिना मुतलाशी नजरों से हॉल में देखते हुए इसे समझा रही थी, फिर इसको लिए एक कॉर्नर टेबल की तरफ चल दी। ऊंचा लंबा मुनासिब शक्ल सूरत का वो शख्स हिना को देखकर मुस्कुराते हुए उठा और वालिहाना अंदाज में उससे मिला। इसके गले लगते हुए हिना के रुखसार पर उसने प्यार किया था। कैसी हो? वो यूं ही उसकी कमर में हाथ डाले पूछ रहा था। अबिया का दिल अजीब सा होने लगा। बहन भाई की ऐसी बेबाकी, बेतकल्लुफी शायद हिना की क्लास का ही हिस्सा थी। हिना उससे अलग होकर पलटी और अबिया का हाथ थामकर इसे अपने साथ किया। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है अबिया, मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पे। हिना उसका तारुफ करवा रही थी, जबकि मुकाबिल की गहरी नजरों ने लम्हा भर में ही अबिया को सरता पास पसीने में शराबोर कर दिया था। इसका शिद्दत से वहां से गायब होने को जी चाहा। नाइस टू मीट यू। इसने अबिया की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसकी रंगत उड़ गई। इसने बेख्तियार खुद को हिना की होठ में कर लिया। कम ऑन सैफी। हिना ने बेतकल्लुफी से अपने भाई के शाने पर हाथ मारा। ये हमारी क्लास के रवैयों की आदी नहीं है, कहते हुए इसने अबिया को कुर्सी पर बिठाया। आई सी। वो अब भी अबिया के दमकते रूप को देख रहा था, फिर हिना को देखकर मायने खेजी से बोला, खैर, हुसन की हर खता माफ होती है। हिना हंसती हुई अपने शिफ्ट पर बैठ गई। बड़ी देर लगा दी आने में, मैं तो कब से आंखें बिछाए बैठा था तुम्हारी राह में। वो हिना को वालिहाना नजरों से तकते हुए बोला। जाने बहन भाई की मुलाकात कितने लंबे अरसे बाद हो रही थी, अबिया को अजीब सा महसूस हुआ। हिना हल्का सा गला खनकार कर बोली, अबिया को मनाने में टाइम लग गया। मैंने कहा मेरी बर्थडे पर मेरी दोस्ती ना साथ हो तो क्या मजा, मगर तुम्हारी मौजूदगी की वजह से झिझक रही थी। मैंने कहा मेरा भाई तुम्हारा भाई। हिना के अंदाज में हल्की सी शरारत थी, मगर सैफी तो जैसे बिदक गया। भाई? हिना ने बेख्तियार सैफी के हाथ पर अपना हाथ रख के दबाया। जी मेरे भाई। वो जैसे तंबीही अंदाज में बोली तो वो ढीला पड़ गया। कुर्सी के पैर से टेक लगाते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ाया, लानत है यार, बंदा कम से कम लफ्ज तो सोच समझ के निकाले मुंह से। हिना जोर से हंसी। तुम्हें ज्यादा एतराज किस पर है, मेरे भाई होने पर या अबिया के? शट अप। वो कदरे बरहम हुआ। अच्छा चलो सॉरी, और अब जल्दी से ऑर्डर करो, वार्डन ने सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया है। हिना ने फौरन ही बात के साथ मूड भी बदल लिया। हिना, वापस चलें? अबिया का दिल हनोज किसी ने मुट्ठी में लिया हुआ था। इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि यह माहौल इसकी तरबियत और इकदार से मेल नहीं खाता। बोर कर दिया ना मेरी फ्रेंड को? हिना ने सैफी को घूरा, फिर अबिया को प्यार से देखकर बोली, आई एम सॉरी यार, इसलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपनी दक्यानुसियत की चादर को उतार फेंको, हर जगह आया जा करो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। वेटर को खाने का ऑर्डर देकर वो दोनों मजहब सरगोशियों में बात करने लगे तो अबिया को अपनी मौजूदगी गैर जरूरी लगने लगी। वो ध्यान बटाने के लिए डाइनिंग हॉल में नजर दौड़ाने लगी, जहाँ हर चेहरे पर रौनक और बेफिक्री थी, और ये दोनों ऐसी चीजें थी जिनका अबिया की जिंदगी में फुकदान था। वो खुद तरसी का शिकार होने लगी। हर कोई अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मगन था, यूं जैसे कभी कोई दुख इन्हें छूकर ही ना गुजरा हो। कुर्सी के सीटने की आवाज पर अबिया बेख्तियार चौंकी। इसने सैफी और हिना को खड़े होते देखा। खाना आने में थोड़ी देर लगेगी बिया, तुम जरा बैठो, हम अभी आते हैं, हिना ने आम से अंदाज में कहा, मगर इसकी रंगत उड़ गई। तुम कहाँ जा रही हो? ये बड़ा खबीस है, मेरा गिफ्ट कमरे में ही भूल गया और अब अकेले लाने पर राजी भी नहीं है। जाके देखूं तो सही, ऐसा कौन सा नाजिर और नायाब गिफ्ट लाया है बस मेरी जान, मैं 2 मिनट में आई। वो इसे बिचकारते हुए बोली तो सैफी की मौजूदगी में अबिया कोई एतराज भी ना कर सकी, मगर इसे बहुत अजीब सा लगा। बहन ने इसी शहर में घर होते हुए भी हॉस्टल में पनाह ले रखी थी, तो भाई कौन सा कम था। इसने होटल में कमरा ले रखा था। वो गहरा सांस भरती फिर से लोगों का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। जरा देर के बाद वेटर आगे बर्तन सेट करने लगा। अभिया ने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर हिना की वापसी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो अपना मोबाइल हॉस्टल में ही छोड़ आई थी, वरना कम से कम हिना को कॉल ही कर लेती। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो दोनों बड़े फ्रेश और अच्छे मूड में वापस आए। इस दौरान
अबिया कई दफ़ा हिना के साथ ना आने का मुसम्मम इरादा कर चुकी थी। हिना ने एक ही नज़र में इसका बिगड़ा मूड भांप लिया। आई एम सॉरी यार, पापा की कॉल आ गई थी सैफी के मोबाइल पे, मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा, सो सॉरी। वो झुककर अबिया के गाल पर प्यार करते हुए बोली तो इसे मूड ठीक करना ही पड़ा। इतना कुछ रख गया है वेटर, इनका तो वक्त बहुत अच्छे से गुजर सकता था। सैफी की मुस्कुराहट पहले से ज़्यादा गहरी थी। ये देखो, डायमंड रिंग और ब्रेसलेट गिफ्ट किया है सैफी ने मुझे। हिना इसे दिखा रही थी। अभिया ने सरसरी निगाह डाली मगर वापसी पर वो हिना से उलझ पड़ी। ये दोनों चीजें इतनी वजीज थी कि तुम्हारा भाई उठाकर ना ला सका कमरे से। हिना दिल खोल के हंसी। कुछ तोहफे लेने के लिए मुकाबिल की हर बात माननी पड़ती है मेरी जान। अभिया इसकी रिटाई पर कुर्ती रिक्शे से बाहर देखने लगी। सबकी रजामंदी के साथ सफीर का रिश्ता ज़ारा के लिए मंजूर कर लिया गया। इन दिनों सफीना का मूड और मिजाज कतरे बेहतर था। जाने सालिया के मरने की खबर पर यकीन आ गया था या फिर बेटी का बेहतरीन जगह रिश्ता लग जाने की खुशी थी। चौंका इन लोगों का इरादा निकाह करने का था, इसलिए शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। अभी भी वो ज़ारा के साथ उसके ससुराल वालों के लिए शॉपिंग करके लौटी थी। उफ, ज़ारा ने शॉपिंग बैग सोफे पर ढेर किया और खुद भी वहां गिर सी गई। इससे पहले शॉपिंग करने में इतनी थकावट कभी नहीं हुई मुझे। ज़ारा माँ की तरह कुछ ज़्यादा ही नज़ाकत पसंद थी, बल्कि इस पर माँ का असर कुछ ज़्यादा ही था। इससे पहले तुम्हारी बात भी तो तय नहीं हुई थी सिस्टर। एराज ने हाथ धोके फ्रेश सा जमाई का साटता हुआ आजिम के आगे टीवी के आगे जम के बैठ गया। मामा, अब ऐजी क्या करेगा? ज़ारा ने सीधा होकर बैठते हुए सफीना से पूछा तो ऐजू माँ से पहले ही बोला, मैं तुम्हारी शादी के बाद इजी फील करूंगा और क्या। जी नहीं, ट्विंस हो, हर काम में शुरू से मेरी नकल करते आए हो, तो मैं तो डरती नहीं कहीं अब तुम भी निकाह के लिए शोर ना मचा दो। अरे वाह, इजो एराज को भी जैसे ध्यान आया। मुझे ख्याल क्यों नहीं आया? कुछ सोचे मम्मा, कहीं से कोई लड़की बरामद करें। वो जैसे बेताब हुआ शादी करने को। सफीना ने मुस्कुराकर इसे देखा। ऐसे थोड़ी बोझ की तरह सर से उतार दूंगी। मैं तो अपने बेटों के लिए चांद से दुल्हने लाऊंगी, दुनिया देखेगी जैसे चांद को देखती है। चांद जैसी, यानी घड़े पड़े होंगे उसकी शक्ल पर। इसने चेहरे पर सदमाती कैफियत तारी करते हुए कहा तो सफीना को हंसी आ गई। बेवकूफ, मिसाल दे रही थी। फिर उन्होंने साफ गोई से कहा, जब तक मोइस की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपने बारे में सोचना भी मत। लो, अब ही उनके बारे में सोचता रहूंगा तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? उसने नाराजगी से कहा। तुम्हारा मैं खुद सोच लूंगी। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। मेरा तो ख्याल था इस बिल्ली के साथ ही भाई की नैया भी पार लगा देती, कम से कम मेरा रास्ता तो साफ हो जाता, फिर मैं जब जी चाहे अपने बारे में सोच लेता। वो यूं ही बातें बिगाड़ता था। वो माने भी तो ना, ऐसे बिगड़ता है शादी के नाम से जैसे खुद खता करने को कह दिया हो। सफीना वाकई मुझ के रवैये से परेशान थी। आप कहें तो मैं पता लगाऊं, मौसू कहीं दिल विल ना लगा बैठे हो किसी गरीब लड़की से, और अब इस डर से आपको बता ना रहे हो कि कहीं आप इसे रिजेक्ट ना कर दें। इसने लम्हों में कहानी बनाई थी। सफीना ने उसे घूरा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लो जी, वो हंसा। हर माँ का यही डायलॉग होता है, तो जो ऐसा करते हैं वो पता नहीं पेड़ों पे उगते हैं शायद। उसके बाद में सफीना के साथ ज़ारा भी हंसी। बाहर की तरफ जाते मुइज़ को सफीना ने आवाज़ देकर बुला लिया। जी मामा, कहाँ जा रहे हो? यूं ही दोस्तों की तरफ, वो मुख्तसरन बोला, मगर सफीना शायद तफसीली बात की मूड में थी। अपने बहन भाई की फरमाइश सुनी है तुमने? ये कह रहे हैं ज़ारा के साथ ही तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जैसा चल रहा है चलने दें, फिलहाल मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ मामा। वो बड़ी बेजारी से एक्सक्यूज करके चलता बना। वाह वाह, क्या नखरे हैं भाई। एराज ने मुतासिर होकर सर धना, फिर शिकायतन बोला, ये अब मूड पर चलेंगे और इधर हम इरादा बांधे बैठे हैं और किसी को परवाह नहीं। शट अप इजू, हर बात मजाक नहीं होती। भाई के रवैये को देखो, ये नॉर्मल नहीं है। पहले हमारे साथ हर हल्ले गुल्ले में शामिल होते थे, मौज मस्ती सैरो तफरी, और अब इन्होंने अपने एक अलग ही दुनिया बना ली है। यूनिवर्सिटी, ऑफिस और घर के अलावा बस दोस्तों के साथ ही नजर आते हैं। हमारे लिए तो जैसे वक्त ही नहीं इनके पास। ज़ारा जज्बाती होने लगी। वो बड़े हो गए हैं अब। एराज ने इसे पिचकारा। वो पहले भी हमसे बड़े ही थे, कोई नए बड़े नहीं हुए। वो चिढ़कर बोली। खैर, अब मैं सोच रही हूँ इस मौजू पर मुझे से खुलकर बात करूँ, आखिर वो चाहता क्या है? सफीना ने कहा। और अगर इनकी डिमांड आपके काबिल कबूल ना हुई तो? एराज ने माँ का इम्तिहान लिया। वो इसे टालती उठ खड़ी हुई।
वो बाद में देखा जाएगा, पहले इसे बात तो करने दो, देखते हैं पटारी में से क्या निकलता है। सांप ही निकलेगा मामा, सपेरा तो निकलने से रहा। एराज की जुबान फिर पिसली तो वो हंस दी। ज़ारा अपनी शॉपिंग समेटने लगी। सफीना ने यही मौजूद इम्तियाज अहमद के सामने छिड़ा तो वो बेसाख्ता बोले, तो इसमें गलत क्या है, जब मूड होगा कर लेगा। सफीना इनके जवाब पर लम्हे भर कर इनके देखती रह गई, फिर बोली, क्या दिमाग मिलता है बाप बेटे का, ऐसे फैसले मूड के पाबंद नहीं हुआ करते इम्तियाज अहमद। ओफो, मेरा मतलब था उसे सोचने के लिए वक्त दो, इन्होंने गड़बड़ा कर कहा। उसका काम सिर्फ रजामंदी शो करना है, लड़की मैं खुद तलाश करूंगी अपने बेटे के लिए, आला खानदान की। सफीना ने फकर से कहा तो इम्तियाज अहमद ने बेख्तियार पहलू बदला। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें, पहले खैरियत से ज़ारा का निकाह हो जाने दो, फिर सोचते हैं इस बारे में। सफीना ने इन्हें घूरा। कमाल है, मैं तो सोच रही थी कि तुम मेरा साथ दोगे, मगर तुम तो उसी की जुबान बोल रहे हो। ये हकीकत है सफीना कि हम मुइज़ की रजामंदी के बगैर उसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अरसा सब्र करो, हो सकता है अभी वाकई वो शादी ना करना चाहता हो, पढ़ रहा है वो अभी, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है उसका, उसके बाद फुल टाइम फैक्ट्री संभालेगा। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो स्कूल में पढ़ रहा हो। वो बदमजा होकर बोली। तो तो उनकी कच बहसी से वाकफियत की बिना पर इम्तियाज अहमद ने बेहतर समझा कि अपना पहलू बचा लें। वैसे भी मुइज़ खुद ही शादी के लिए राजी नहीं था, वो इसकी हिमायत ना भी करती तो ये मामला सर चढ़ने वाला नहीं था। चलो ठीक है, तुम जो मुनासिब समझती हो वो कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो माने तब ना, सफीना झुंझुलाई। तो फिर फिलहाल उसे उसके हाथ पर छोड़ दो। इनके इत्मीनान को सफीना ने शक की नजरों से देखा, मगर बोली कुछ नहीं थी। वो इम्तियाज अहमद के ऑफिस में बैठा था, इनकी बात सुन के उछल ही तो पड़ा। क्या कह रहे हैं आप अब्बू, उसको ज़ारा के निकाह में इनवाइट करेंगे? बेयकीनी से ज़्यादा नागवारी इसके लहजे में आया थी। तो इम्तियाज अहमद ने सवालिया अंदाज में भवें अचकाई। जायज़ और शरई रिश्ता है उसका सबसे। आप अपने लफ्ज़ों से फिर रहे हैं, शादी के वक्त आपने कहा था कि इसका हमारे घर और इसके मकीनों से कोई रिश्ता ना होगा, मुइज़ ने भींचते हुए लहजे में कहा। बहुत से फैसले वक्त और हालात को देखकर करने पड़ते हैं मुइज़, और इस वक्त हालात का तकाजा यही है कि मैं इसे तन्हा ना छोड़ूं। जो जिम्मेदारी मैंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के अपने शानों पर ली थी, उसे निभाऊं। वो बेहद संजीदा थे। मुइज़ ने अपने चीखने की ख्वाहिश पर बहुत मुश्किल से काबू पाया। खुद को बवक्त संभाल कर वो तल्खी से बोला, और मामा, वो जो क़यामत मचाएंगी उसका कुछ सोचा है आपने? अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उसे संभाल लूंगा मुइज़। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। मुइज़ ने फिलफौर कतियत से इनकार कर दिया। हरगिज़ नहीं अब्बू, मैं पहले ही आपका बहुत साथ दे चुका हूँ, मगर इससे ज़्यादा कुछ और भी नहीं। आप उसे घर बुलाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर, मामा के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। तुम सिर्फ उसके साथ अपने रिश्ते का तयन कर लो मुइज़, बाकी काम मेरा। मुइज़ ने तासुब से बाप को देखा, फिर खफीफ से गुस्से भरे लहजे में बोला, उसका हर रिश्ता सिर्फ आपसे है अब्बू, मैं तो फ़कत एक मुश्किल वक्त में आपका साथ दे गया था, आपका भरम रखा था मैंने, और बस। और बस? इन्हें उसके लफ्ज़ों ने तकलीफ दी थी। जी, और बस, दैट्स ओवर एंड ऑल। वो तल्खी से कहता वहाँ रुका नहीं, उठा और ऑफिस से बाहर निकल गया। इम्तियाज अहमद ने बेख्तियार अपने दिल को मसला, जहाँ वो हल्का सा दर्द महसूस कर रहे थे। जाने मैं जिम्मेदारी निभा पाऊंगा या नहीं। ज़ारा के निकाह की तकरीब शहर के बेहतरीन मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई थी। सफ़ीर और ज़ारा की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। आज मुइज़ का भी मूड बहुत अच्छा था। बहुत अरसे के बाद वो सबके साथ खुशखबरियों में मशगूल था। ऐसे में कितनी ही बार इसने खुद को किसी की निगाहों के हिसार और किसी की तवज्जो का मरकज़ पाया। वो रुबाब थी, ज़ारा की नंद, बेहद मॉडर्न और बोल्ड, एक ऐसी लड़की जिसे अपनी खूबसूरती का पूरी तरह एहसास था, और इसी एहसास ने इसे इतना एतमाद दिया था कि जब मुइज़ सफ़ीना के पास खड़ा था तो वो खुद आकर सफ़ीना से बोली, देख रही हैं आंटी, ये वैल्यू है लड़के वालों की, यहाँ तो हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। बड़ा नाज भरा शिकवा था, निगाहें गलत लापरवाह बने खड़े मुइज़ पर थी। क्या हुआ बेटा? सफ़ीना की परेशानी फितरी थी। भाई कोई कंपनी ही नहीं दे रहा यहाँ हमें, बोर हो गई मैं तो। एक रात से दोस्त हुई थी, मगर आज तो वो भी स्टेज पर बैठे पोज दे रहा है। उसने मुंह बसूरा तो सफ़ीना बेख्तियार मुस्कुरा दी। इन्होंने मुइज़ का बाजू थाम कर कहा,
तो चलो अब मोइज से दोस्ती कर लो, ये भी बहुत अच्छी कंपनी देता है। सफीना जैसे मोइज के हवाले करके एक्सक्यूज करती स्टेज की तरफ बढ़ गई। इन दोनों के दरमियान खामोशी ठहर सी गई थी। आप अपनी जुबान दिखाएंगे? रुबाब ने अचानक फरमाइश की तो मोइज हैरान हुआ। जी, वो क्यों? थैंक गॉड, दरअसल मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बेजुबान मर्द नहीं देखा था, मगर आप तो अच्छा खासा बोल लेते हैं। वो शरारत से बोली तो वो बेसाख्ता ही हंसा बड़े अरसे के बाद, मगर इसे अपना हंसाना खुद ही कुछ इतना अजीब लगा कि फौरन ही होंठ समेट लिए। हाय, आई एम रुबाब। उसने जैसे नए सिरे से तारुफ कराते हुए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे थामकर वो इसी संजीदगी से बोला जो इसका खासा बन चुकी थी। मुझे मोइज अहमद कहते हैं। तो मोइज अहमद साहब, आपको अच्छा लग रहा है ये आप जनाब और बनावटी तकल्लुफात? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। मोइज ने शाने अचकाए। तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे जी चाहे बात करो। मैंने तुम्हें अदब और अदाब का ऑर्डर नहीं दिया। शुक्रिया, वो सर झुकाकर ममनूनियत से बोली। मोइज यार, तुम्हारी गाड़ी किसी की गाड़ी के पीछे खड़ी है पार्किंग में, जाके देखो, इन्होंने गाड़ी निकालनी है अपनी। मोइज के कजन ने आकर पैगाम रसानी की तो रुबाब ने बदमजा होकर उसे देखा। मोइज एक्सक्यूज करता हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुबाब की सिताइशी नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया। पार्किंग एरिया में आकर मोइज ने अपनी गाड़ी निकाली तो आगे वाली गाड़ी को निकलने का रास्ता मिला। वो दोबारा अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर की तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज मी, एक नस्वानी आवाज ने उजलत में उसे पुकारा और ठटक कर पलटा। स्याह चादर में मलफूफ मौजूद। मोइज को शक हुआ, क्या इसने मुझे ही पुकारा है? जी फरमाइए। स्याह चादर का पर्दा रुख थोड़ा सा हटा तो मोइज की निगाह लम्हा भर को ठिठक सी गई। वो यहाँ कोई शादी का फंक्शन है? वो घबराई सटपटाई सी लड़की थी। किसकी शादी पर इनवाइटेड हैं आप? मोइज ने सवाल किया। जी वो दरअसल शादी निकाह था शायद, इम्तियाज अहमद साहब की बेटी का। इसकी पेशानी चमक उठी थी। मोइज बड़े जोर से चौंका। इसकी खामोशी पर वो घबरा सी गई। मैं उनके ड्राइवर के साथ आई हूँ, उसने मुझे बाहर ड्रॉप किया है। मोइज के तन बदन में शरारत सा दौड़ गया। कौन हो तुम? जी मैं अबीहा। वो इसके बदलते अंदाज से खौफजदा सी होकर बोली तो मोइज लम्हा भर को लड़खड़ा सा गया। जिस क़यामत का वो सोचना भी ना चाहता था, आज वो इसकी दहलीज पर आन खड़ी हुई थी। इसे अंदर हॉल में सबके हंसते मुस्कुराते मुतमिन चेहरे नजर आए, और अगर ये फितना अंदर चला गया तो क्या फसाद मचेगा, कैसी जगह सही होगी। और मामा, वो तो क़यामत उठा देंगी। मोइज की रगों में लावा दौड़ने लगा। उसने बेइख्तियार आगे बढ़कर अबीहा का बाजू जकड़ते हुए घुर्राते हुए कहा, मैं इम्तियाज अहमद का बेटा हूँ, जानती तो होगी तुम मुझे। मोइज अहमद नाम है मेरा, और मैं तुम्हें अपने हंसते भसते घर को तबाह करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। अब्बू ने तुमसे रिश्ता जोड़ा है, उसमें उनका साथ देना मेरी मजबूरी थी, मगर तुम्हारी वजह से मेरी माँ का सुकून बर्बाद हो, यह मुझे कतन कबूल नहीं। आई बात समझ में? मोइज ने इसके बाजू को झटका दिया तो इसकी चादर सिरक कर शानों पर ढलक गई। मोइज की आंखें चंदिया सी गईं। आंखों आंसू से भरी आंखें खौफ से फैली हुई थीं, जैसे इसका तारुफ इस पर पहाड़ बन के गिरा हो। मोइज ने इसे खफीफ सा धकेला तो वो लड़की पीछे हटी। दफा हो जाओ यहाँ से और भूल जाओ किसी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है। गेट आउट, वो नफरत भरे लहजे में कहता लंबे डग बढ़ता अंदर की तरफ बढ़ा और जेब से मोबाइल निकाल के इम्तियाज अहमद के ड्राइवर को कॉल मिलाई। हबीब खान, बाहर पार्किंग में अभी जिस लड़की को ड्रॉप किया इसे वापस वहीं छोड़ाओ जहाँ से लाए हो। वो हुक्मिया अंदाज में बोला। मोबाइल ऑफ करके जेब में डालते हुए मोइज अहमद ने खुद को अजीब सी वहशत का शिकार होते हुए महसूस किया था।